basically after the Industrial Revolution, Europeans started inventing the new places, okay, to run their industries in the search of a new market, in the search of the new resources. They started finding out the new places. That is the era of exploration. And as the era of exploration begins, the Europeans also contributed in the racial studies. Okay, so what I have mentioned that such kind of division, what kind of division? The division among the different racial group were made basically by the physical anthropologists. एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञान को कहते हैं, तो मानव वैज्ञानिकों ने ये डिफरेंसेस की स्टडी की, क्योंकि इनका स्टडी ही मानव के ऊपर होता है. एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस इन विच दे डील्स विद द ह्यूमन बींग्स एंड देयर कल्चर दे स्टडीज. So anthropologists, when in the 18th century and considered as the scientific classification of human beings. So when the scientific classification of the human beings begins exactly in the scientific way in the 18th century, by whom? By the anthropologists. So scientific study of the human classification begins in the 18th century by whom? By the anthropologist. अब देखो यहाँ पर भी along with the physical features, okay, most of the times behavioral characteristics were also added to various races. अभी तक हमने behavior characteristics के ऊपर डिस्कशन नहीं किया. अभी तक हम लोग बायोलॉजिकल फीचर पढ़ रहे थे, स्किन का कलर पढ़ रहे थे, हाइट पढ़ रहे थे, बाल का पैटर्न पढ़ रहे थे, ठीक है ना, बिहेवियरल पैटर्न नहीं पढ़ रहे थे. लेकिन later the anthropologist stated that कि when you started learning the human being, you also must learn their behavior, क्योंकि बिहेवियर भी एक फैक्टर बनेगा क्लासिफिकेशन का. एक रेस और दूसरे रेस का कंपेयर करोगे तो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ज्योग्राफर, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि आपको बिहेवियरल डिफरेंसेस भी दिखाई देंगे. मींस इंडियंस का बिहेवियर इज डिफरेंट देन यूरोपियंस, यूरोपियन का बिहेवियर डिफरेंट देन नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स एज वेल एज अफ्रीकन नेटिव्स एज वेल एज द मंगोलॉयड रेसेस. क्यों ऐसा होता है और क्या बिहेवियरल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं? अब यहाँ जब बिहेवियरल डिफरेंसेस की स्टडी हुई तो कुछ ने अपनी सुपीरियरिटी भी शो करने की कोशिश की. जैसे से फॉर एग्जांपल, आई एम अ लर्नेड पर्सन, I have started learning about the racial differences among the human being, and what I feel that when I am started explaining the differences, I started reflecting that our races to whom I belong is a superior one. अब ऐसे यूरोपियंस ने अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की. कैसे? देखो तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि फ्रेडरिक Ferrer in 1866 he lectured on the aptitude of races. इन्होंने पहली बार, ठीक है ना, लेक्चर दिया किस चीज के ऊपर? So the Ferrer, Frederick Ferrer in the 1866 lectured on the aptitude of the races, okay, where he divided the people into 3 groups based on civilization. इन्होंने 1866 में अपने लेक्चर में एप्टीट्यूड ऑफ रेसेस, ठीक है, पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में बांटा. एक ग्रुप का नाम दिया सैवेज, SAVAGE. व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट कम्स अंडर दिस ग्रुप? इसके अंडर कौन आया, किसको रखा? ऑल अफ्रीकन्स, इंडिजिनस पीपल, पीपल ऑफ द कलर with the exception of the Chinese. Okay, all Africans, indigenous people, okay, the people with the black color exception of the Chinese. Chinese is not comes under savage. तो एक ग्रुप बनाया इन्होंने ऐसा. The second group, when you look at semi savage, okay,
what he said that the Chinese who were once savage type but now well civilized. इन्होंने कहा कि जो जो सैवेज है वो अनसिविलाइज्ड है. अब सोचो, द फ्रेडरिक वेन स्टडीड, ओके, द फ्रेडरिक व्हाट ही सेड दैट all African indigenous people are savage, uncivilized. Okay, uncivilized, having the dark skin color, they kept under savage. And what the Frederick stated in his lecture in 1866 when he talked about the aptitude of races, तो उसने क्या कहा, ये savage के अंदर all African indigenous people are there except the Chinese and the other indigenous people. Okay, तो उन्होंने कहा all these are uncivilized. अब देखो, the Chinese who were once savage, बोला Chinese कभी uncivilized थे, savage थे, but now they well civilized. और तीसरा इन्होंने कहा civilized. civilized के अंदर कौन है, बोला यूरोपियंस, आर्यंस एंड सेमिटिक पीपल्स. दिस आर कम्स अंडर द सिविलाइज्ड. अब अगर आप आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, कल मैंने आपको बताया था आर्यंस के बारे में, मैंने कल बताया था आर्यंस कहाँ से आए, तो बोला मैंने कि ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन. देयर आर लॉट्स ऑफ व्यूज. कहाँ से आए, वही कॉकसवाइडल रीजन से आए, यानी ब्लैक और कैस्पियन सी के बीच के लोग हैं जो भारत में आए, इंटर किए. एंड वी बिलोंग्स टू द आर्यन रेसेस बिकॉज दे पुश द द्रविडियंस टू द साउथ टू द सतपुड़ा माउंटेन. इन्होंने द्रविडियन को हराया, दास बनाया. द्रविडियन जो है वो पीछे भागते भागते कहाँ चले गए, सतपुड़ा रेंज को क्रॉस करके सदर्न इंडिया में शटल हो गए. तो उनके स्किन कलर ब्लैक होते. एंड द नदर्न इंडिया में द पीपल हैविंग द मिक्स्ड रेसेस वो आर्यन रेसेस हैं. ठीक है ना, इंडो यूरोपियंस कहते हो, यानी यूरोप से और सेंट्रल एशिया से लोग आकर भारत में, और वहाँ एक रेस डेवलप हुआ इंडियंस नेटिव्स के साथ जब मैट्रिमोनियल रिलेशन हुए, तो ये क्या है, इंडो यूरोपियन रेस, व्हाट वी कॉल्ड द आर्यंस. ओके, सो आर्यंस आर बेसिकली एडवेंट फ्रॉम देयर. सो व्हेन यू लर्न द हिस्ट्री यू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट थ्योरीज given by the historians about the origin and the advent of Aryan, but largely the people or historians believes that the Aryans came from the Caucasoidal region or somewhere from the Central Europe. So according to the Frederick Ferrer, the human beings can be categorized into three on the basis of their behavior. The human being, those who are uncivilized are comes under savage. Those who are civilized, okay, earlier uncivilized but now changed as a civilized, are called as semi-savage, and purely civilized are these people. तो ये किस आधार पे क्लासिफिकेशन है, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी आ गया, बिहेवियरल एस्पेक्ट. और यूरोपियंस ने क्लासिफाई किया तो अपने रेसेस को सुपीरियर भी बताने की कोशिश. अब देखो, कार्लस लीनियस, बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप कार्लस लीनियस को, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने. ठीक है ना, आप जो अभी पढ़ते हो ना होमो सेपियंस, ये नाम इन्होंने ही दिया. ये नाम का मतलब है ऐसे नाम लिखते हैं स्पीसीज का, ये इन्होंने ही बताया कार्लस लीनियस कि ऐसे ये जेनरिक नेम है, ये स्पीसीज नेम है. इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. दो है ना वर्ड यहाँ पे. इनका नाम था कार्ल वॉन लीने, अपना नाम भी उन्होंने दो नाम रख लिया, कार्लस लीनियस, नाम को छोटा कर लिया. क्यों, इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अपना इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर. आज भी हम फॉलो करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन बायोलॉजी. जब स्पीसीज नेम लिखते हो तो जेनरिक और स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वर्ड यूज करते हो. ठीक है ना. तो कार्लस लीनियस वाज ट्रूली अ फर्स्ट पर्सन. ही वाज अ जर्मन टैक्सोनॉमिस्ट. टैक्सोनॉमिस्ट किसे कहते हैं, बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ही है जिसमें आप क्या करते हैं, वर्गीकरण, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग क्लास में रखते हैं स्पीसीज. तो ही वाज अ टैक्सोनॉमिस्ट.
and he was from Germany. Germany is in Europe, as you people know. So Carolus Linnaeus classified the human beings into the 4 categories depending upon the skin color. Okay, so he was the first, truly the first person who classified scientifically the man into 4 different groups on the basis of the color of his skin. What he said, Americans. When you called Americans, I am talking about the Red Indians, not the present American, because America was the colony of Britain. तो वहाँ white races dominant है, but native की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप रेड इंडियन के नाम से जानते हो, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका में भी रहता है, नॉर्थ अमेरिका में भी रहता है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में भी रहता है. So when I am talking about the red Indians, so American, the skin color is red. Then Carolus Linnaeus stated that Europeans having the skin color white, the Asian, the skin color are yellowish, and the African, the skin color is black. अब देखो, इन्होंने ये तो 4 ग्रुप बता दिया कि स्किन कलर देखोगे तो तुम्हें वेरिएशन दिखाई देगा कॉन्टिनेंटल स्केल्स पर. He also said that, अब देखो यहाँ बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी कार्लस लीनियस बताने की कोशिश करते हैं और यूरोपियंस की सुपीरियरिटी भी प्रूफ करने की कोशिश हो रही. What he said that Americans are ill-tempered. This is the behavior. American are ill-tempered. American, when I'm talking about the person having color of his skin red. I'm talking about, that's why they are known as red Indians, because when the, as you know, when the America was discovered by the Columbus, when the Columbus reached, वो तो भारत खोजने चला था ना, वो पहुंच गया अमेरिका, तो अमेरिका में देखा स्किन कलर रेड है, वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहना शुरू कर दिया. बात समझ में आया? क्योंकि वो तो दिमाग में लेके चले थे, वो इंडिया घूमने चले, इंडिया ढूंढने चले, बट इंडिया के बारे में सुना था, पहुंच गए वो उधर, वहां के नेटिव्स को क्या बुलाना स्टार्ट किया? रेड इंडियंस. ओके, वाई? बिकॉज स्किन कलर इज रेड. लेटर पता चला वास्को डिगामा भारत पहुंचा. द पोर्तुगीज केम टू इंडिया ना फर्स्ट, वास्को. But Columbus, when identify reached the America, then he started saying the native people red Indians. वो लेके सपना चला था भारत ढूंढने का, बट कोई नया कॉन्टिनेंट ढूंढ लिया, अमेरिका ढूंढ लिया नहीं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ओके, कैस्पियन आइलैंड, तो कैरेबियन आइलैंड, सॉरी. सो व्हाट ही सेड दैट, मतलब इनका क्या कहना है कार्लस लीनियस का, कि अगर अमेरिकन्स को देखोगे, जब मैं अमेरिकन बात कर रहा हूं तो नॉट प्रेजेंट अमेरिकन, नेटिव की बात कर रहा हूं, जो वहां के मूल निवासी हैं, इंडिजिनस पीपल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है. दे वर इल टेम्पर्ड, ओके, सबड्यूएबल, सबड्यूड पीपल, वाइल यूरोपियंस, कार्लस लीनियस का कहना है, यूरोपियंस आर सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग. European are serious and strong. They are not subdued, not ill-tempered. Asians are melancholy. इसका मतलब क्या होता है? वो आदमी जो हमेशा उदास रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है ना, बैठा रहेगा. तो वो उसने सोचो, कार्लस लीनियस said identify the behavior of the people and said that Asian are melancholy. वो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा हाय हाय वाला प्रवृत्ति रहेगा, ऐसा है वैसा है लाइफ में कुछ, ठीक है. एंड ग्रीडी, व्हाट इज इट? अब बायस भी हो सकता ओपिनियन. आई एम सेइंग दैट द यूरोपियंस, ही वाज अ जर्मन, व्हाट ही सेड दैट यूरोपियंस आर स्ट्रॉन्ग and serious, but Asian are melancholy as well as greedy. Okay, the red Indians means Americans are the ill-tempered and subdued people. Okay, as well as what he said, African are listless and lazy. Okay,
These are lazies and Berbers, not barbers, Berbers, uncivilized, listless. अब यहाँ क्या समझ में आता है आपको कि बिहेवियरल एस्पेक्ट में ये यूरोपियन सुपरमेसी को शो कर रहा है. तो कार्लस लीनियस इज ट्राई टू शो द यूरोपियन सुपरमेसी. So this shows the behavior. So first time in the Carless Linnaeus classification, the behavioral aspect also added. Behavioral aspects also added to classify the people, classify the human being. Human being को पहली बार कार्लस लीनियस ने किस आधार पर क्लासिफाई किया? बिहेवियर के आधार. उन्होंने स्किन के कलर के भी बेसिस पर उन्होंने बिहेवियर को भी पढ़ा और ये बताने की कोशिश. बट यहां पर क्या दिखाई देता है? यूरोपियन सुपीरियरिटी को उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. अब ये सही है कि गलत है वो बाद में देखें. But the opinion like that has raised the confidence of European, and European started controlling the entire world. यूरोपियन का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ गया और आज भी डोमिनेंट रेसेस वाइट ही है अगर आप देखेंगे. ठीक है, अब देखो. बट नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड बिकॉज द जियोपॉलिटिक्स इज चेंजिंग. बट for the prolonged period of time, the Europeans has what? Controls this global affairs. Okay, controls the various races. The white races has controlled. They make the other races slave. ठीक है, तो विचार का बड़ा प्रभाव पड़ता है, यहां आपको दिख रहा होगा. Next, when you look at the Europeans colonized part of Africa, Asia and other countries and justified their claim of superiority, okay, over the others. They took help of religion, beliefs and ever science. कॉलोनीज बनाने के लिए, डोमिनेंस अपना बनाने के लिए उन्होंने अपने रिलीजन का इस्तेमाल किया, बिलीफ सिस्टम और ऑफ कोर्स द साइंस. They proved their agility, they proved their strength, they proved that they were the superior community. ठीक है ना, वो जाने लगे. बट धीरे धीरे जब लोगों का कॉन्फिडेंस दूसरे रेसेस का भी बढ़ा तो उन्होंने पुश करना शुरू किया उस रेसेस को और इंडिपेंडेंस हासिल किया. उसमें हम भी थे, उसमें अमेरिकन भी थे, उसमें चाइनीज भी थे, उसमें अफ्रीकन सारे देश, साउथ अमेरिकन सारी कंट्री. बट किसका डोमिनेंस था? वंस यूरोपियन. और यूरोपियंस ने नॉट ओनली दे यूज रिलीजन, इसीलिए तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में इतने क्रूसेड आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में. ठीक है ना, द होली वॉर. व्हाट? टू शो देयर डोमिनेंस. ओके, बिकॉज दीज आर द टू रिलीजन्स विच ग्रो एंड इन द वेस्ट एशिया. दोनों का बर्थ प्लेस एक ही है ना, दोनों की सिक्योरिटी के लिए. एट द एंड द इस्लाम हैज Constantinople and enter into the Europe. इस्लाम कॉन्स्टेंटाइनपोल पे कब्जा किया जहाँ थी, जिसे कुछ दुनिया कहते हो हिंदी में, और वहां से उन्होंने रैवेज किया क्रिश्चियन पावर को और फिर वो यूरोप में इंटर कर गए इस्लाम. ठीक है ना. द प्रिंस सुलेमान हैज डिफीटेड द क्रिश्चियन इन द लास्ट क्रूसेड और द 7th टाइम होली वॉर हुआ है. तो आप पढ़ेंगे इन द वर्ल्ड हिस्ट्री about that, and the conflict is still going on. The racial conflict and the religious conflict is still going on. अभी फ्रांस में आपने देखा कि कम्युनल वायलेंस हो गया था. बेसिकली वो वायलेंस क्यों हुआ था? वन किड वाज किल्ड बाय द पीपल, बाय द पुलिस. पुलिस ने एक बच्चे को गोली मार दी थी. ठीक है, बच्चा किस इस्लामिक कम्युनिटी से था, वहां रेज हो गया. ठीक है, तो अभी भी आप देखोगे कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट. अभी इजराइल पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट है, दैट इज आल्सो रिलीजियस एंड रेशियल एथनिक कन्फ्लिक्ट.
ठीक है ना, जुडाइज्म और इस्लाम के बीच का कन्फ्लिक्ट है वो, अगर आप देखेंगे बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन. सो स्टिल द कन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, ओके, to prove which race is dominant, which religion. So basically they use it. The European also use the Darwin's theory of this survival of the fittest. डार्विन ने अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये लिखा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मैंने क्या कहा था, द पावरफुल ओनली सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, नॉट द वीक. नेचर ऑलवेज सेलेक्ट द पावरफुल. So they always believe in this idea and was used by the colonial power to justify their genocide. और इस आधार पे उन्होंने जीनोसाइड और रेसिज्म किया. तुमने देखा होगा ना, टैंक और तोप से लगा के उड़ा के मार देते थे लोगों, गांव का गांव, शहर का शहर. जब 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ोगे तो कर्नल ओ नील ने बनारस में बच्चों बच्चों तक को निकाल के काट दिया था गलियों में. Brutally they subside the 1857 revolt in India. So wherever the Europeans went, they did the genocide. ठीक है ना, उन्होंने जीनोसाइड किया. आपने हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप के बारे में सुना होगा ना. जुडाइज पीपल, जूस को उसने बंद कमरे में, एक एक छोटे छोटे कमरे में सैकड़ों हजारों लोगों को ठूस दिया, वो सफोकेशन से मर गए. ठीक है. सो दे प्रूव देयर जेनोसाइड एज अ लेजिटिमेट. उसको प्रूफ करने की कोशिश की. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को फिट, स्ट्रांग, पावरफुल मानते थे और कहते थे कि डार्विन की थ्योरी के अनुसार वही इस दुनिया पे राज करेगा जो पावरफुल होगा. ओके, एंड दे प्रमोट द रेसिज्म. दे ट्रीट अदर रेसेस एज अ स्लेव, एंड यू फाइंड देयर आर सो मेनी, एंड दैट discriminations also enter into India. Okay, तो इंडियंस भी रेसिज्म के आधार पे बहुत, इनके साथ भी स्लेव का बर्ताव किया. जब ब्रिटिश आए यहाँ पे, यूरोपियंस आए, आपने पढ़ा ही है हिस्ट्री या देखा होगा मूवीज में, ठीक है, या पढ़ेंगे. दिस थ्योरी मीन्स दैट द स्ट्रॉन्ग वुड सर्वाइव एंड द वीक वुड डाई. Okay, and thus they legitimize the slavery of the blacks and supremacy and various other rights of the whites. Who? The Europeans. Okay, such beliefs of racial superiority of the whites, they believed, gave them the rights to colonize other population. और यही इनका बिलीफ सिस्टम इनको ये सोच दे दिया कि ये सुपीरियर रेस है और इनका अधिकार बनता है कि ये पूरी दुनिया पर कब्जा करें, और इसके लिए उन्हें जेनोसाइड करने तक के लिए भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होता है. क्यों? क्योंकि इनको लगता था वीक के लिए दुनिया ही नहीं है. द रेशियल डिस्टिंक्शंस एंड द फिजिकल फीचर्स normalize the idea that whites are superior and other are lesser form of the human beings. Okay. तो यूरोपियंस को छोड़कर बाकी लेशर फॉर्म है, वीक. एंड फ्रॉम हियर द हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस इन इंटायर वर्ल्ड. सो हु स्टार्टेड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? द यूरोपियंस बिगिंस इट. और आज हमें ज्ञान देते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन पर, नहीं? हु डिड द ह्यूमन राइट वायलेशन? एट मोस्ट द यूरोपियंस डिड. ठीक है ना. आज UNHRC बन गया है. सब जब वही होता है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, तो अभी अब ज्ञान दे रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है ना, बेसिस पे आपको काम करना चाहिए. एंड ही सेज दैट दे वर सिविलाइज्ड. और वो क्या कहते हैं? वो सिविलाइज्ड है. नहीं, आपने करोड़ों अरबों लोगों को मार दिया, जीनोसाइड कर दिया, गांव के गांव, शहर के शहर, देश के देश बर्बाद कर दिए, और आज आप कहते हैं यू आर मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट सिविलाइज्ड रेस, मोस्ट पावरफुल. ओके, so this is the things what you started learning. So that's why we see it strongly. What you have did has
did in the past, go and look at. Then you started giving us the lecture about what we are doing. Okay. So basically the racial. Now, Fleming back, he was another anthropologist, a German anatomist also, classified the human into 5 races on the basis of his skin color: white, yellow, red, black and brown. So he was also a person, okay, that he started classifying on the basis of his skin color. Though the race is considered to be the biological, मैंने अभी बताया कि रेस किस आधार पे आपने डिवाइड किया, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे, बट द सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ओके, is also considered, and race is considered as a social construct rather than biological. अब देखो, जब सोशियोलॉजिस्ट स्टार्ट किया रेस को पढ़ना, तो सोशियोलॉजिस्ट का ओपिनियन है कि रेस को अगर समझना हो तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से नहीं क्लियर होगा, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन भी पढ़ना पड़ेगा. तो क्या है सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस जिसको पढ़ने के बाद आप रेशियल डिफरेंसेस और बेटर कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द रेस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. Earlier what I have read, I have teach you what I have discussed with you people, that the race is a biological concept. But here what the sociologist believe, that no, race is not a biological concept, race is a sociological construct. यानी इसमें sociological blend भी है. तो आप देखते हैं कि sociological dimensions क्या है. The author consider race as a category of social stratification. Okay. And Semdele argues that till the 17th century there was no historical record that the idea of race exists. बोला 17th सेंचुरी तक किसी को पता नहीं था कि पूरे दुनिया के पॉपुलेशन में अलग अलग स्किन कलर और अलग अलग हाइट और इस तरह के लोग हैं. 17वीं शताब्दी के बाद, लेकिन मैंने आपको बताया था 13-15 BC में इजिप्शियन ने पहले स्टडी करना शुरू कर दिया था, बट 17th सेंचुरी तक लार्जली क्लियर नहीं था. 18th सेंचुरी से ज्यादा स्टडी शुरू हुई है. फर्दर आर्ग्यूज दैट रेस इज द प्रीमियर सोर्स ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी. सो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द रेसेस इज गोइंग ऑन, एंड फर्दर टुडे वी आर्ग्यूज दैट द सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट द प्रीमियर सोर्स ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी इज द रेस. तो ह्यूमन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो रेस की स्टडी जरूरी है, इसका मतलब ये है. ओके. एंड इन द ओपिनियन ऑफ क्रोबर, अ रेस इज अ वैलिड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. द ब्रीड ऑफ जेनेटिक स्ट्रेन और सब स्पीसीज, एंड इट इज नॉट अ वैलिड सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट. क्या कंफ्लिक्ट में बता रहा हूं कि वेदर क्वेश्चन आएगा वेदर द race is biological concept or the social concept. So already I had discussed that it is a biological. अब फोकस क्या है, ये देखना कि ये सोशल कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं. अब इन्होंने क्या कहा, क्रोबर ने, कि नहीं ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो है सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट है ही नहीं. इन्होंने तो डिनाई कर दिया इस एस्पेक्ट को. लेकिन इससे सोशियोलॉजिस्ट जो है वो नाराज हो गए, भाई वो सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, उनको वैल्यू ही नहीं तुम दे रहे हो. तो लर्नेड पीपल के बीच में भी तो होता है कन्फ्लिक्ट. अब वो जस्टिफाई करेगा अपने स्टडी से कि नहीं सोशल कंस्ट्रक्ट है. तो अभी देखेंगे हम, और आपको लिखना पड़ेगा फिर बाद में कॉन्क्लूजन पढ़ने के बाद. इन द ओपिनियन ऑफ J.B. Birdsell, a race is an interbreeding group whose gene pool is different from the other population. What is the gene pool? Entire set of gene. एक पॉपुलेशन के अंदर, जैसे इंडियन पॉपुलेशन में देखोगे तो सेट ऑफ जीन डिफरेंसेस आपको दिखाई. तो इंडियंस कम्युनिटी को अगर दूसरे नेग्रिटो से कंपेयर करोगे तो जीन में डिफरेंसेस दिखाई देंगे आपको.
इंडियंस का जो टोटल इंडियंस का जीन स्टडी करो और अफ्रीकन का जीन स्टडी करो तो जेनेटिक डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा। तो इन्होंने क्या कहा कि बेसिकली जीन के आधार पे, जीन पूल यानी टोटल सेट ऑफ जीन के आधार पे हम एक रेस को दूसरे रेस से अलग कर सकते हैं। इसका मतलब इनका भी मानना है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीन स्टडी कर रहे हो जेनेटिक्स, तो यानी इसका मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द जेबी बर्डसेल ऑल्सो द race is a biological concept. Okay, head on another scholar stated that race as biological breed based on combination of physical trait which are transmitted. इन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया कि क्या है, रेस बायोलॉजिकल ब्रीड्स हैं जिसमें फिजिकल ट्रेट कॉमन होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यानी इस तीन के ओपिनियन को पढ़ने से आपको ये लगता है यहां कि रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सो इफ द क्वेश्चन अपीयर कि whether race is a biological concept or a social construct or anthropological construct, then what you can write till now, अभी तक की स्टडी से आप यही कंक्लूजन पर आए हो कि रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं फिर इस चीज को मैंने कहा कि अभी यहीं तक एंड नहीं है स्टडी, आगे भी करेंगे और देखेंगे कि दूसरे की ओपिनियंस क्या है इसके बारे में। व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ अदर, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट अबाउट द रेस।